जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. In this, we are measuring consumer equilibrium with the help of marginal utility analysis, that is with the help of cardinal approach. And you all know, students, cardinal approach means when we are measuring our utility in numbers. So when we are measuring our utility in numbers, it is known as cardinal measurement of utility. And according to cardinal measurement of utility, we are measuring consumer equilibrium either in one commodity case or either in two commodity case. Now today I am going to explain you ordinal measurement of utility. Ordinal measurement of utility means that utility cannot be measured in numbers. अभी तक आपने पढ़ा कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजरमेंट करते हैं, दैट मीन्स हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है हम उसको नंबर्स में बताते हैं. बट देर आर सम इकोनॉमिस्ट हु आर अगेंस्ट दिस अप्रोच and they said that ki utility cannot be measured. They said that utility is a psychological feeling, that is a feeling of satisfaction, so it cannot be measured in numbers. It can be ranked, it can be compared. उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, बल्कि हम इसे रैंकिंग दे सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको एक दूसरे से हाई और लो, गुड और बैड, मोर और लेस करके हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. So according to the ordinal measurement of utility, also we are measuring of consumer equilibrium, and that consumer equilibrium in ordinal measurement of utility is known as indifference curve analysis. That is IC analysis. Indifference curve analysis, you know that in this particular equilibrium, we are taking two types of goods, and both the goods are the perfect substitute of each other. Substitute, you know, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि अगर जो हम दो गुड्स ले रहे हैं इसमें, वो दोनों गुड्स आपस में एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होने चाहिए. कि अगर हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम उसके दूसरी गुड्स को हम यूज़ करें तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी. जैसे सपोज टी और कॉफ़ी. टी और कॉफ़ी इज़ अ सब्सटीट्यूट गुड्स. अगर चाय नहीं है हमारे पास, चाय की पत्ती नहीं है, तो उसकी जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं. तो दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स है कि एक के बदले हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स etc. So here in indifference curve analysis we are taking substitute goods, and we are taking the example of two goods that they both the goods should be perfect substitute of each other. तो इसमें हमें ये बताना है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे होगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे होगा थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. दैट इज व्हेन वी आर नॉट मेजरिंग आवर यूटिलिटी इन नंबर्स, बट वी आर मेजरिंग आवर यूटिलिटी बाय रैंकिंग, बाय कंपेयरिंग एटसेट्रा. So this is known as indifference curve analysis. Before going to explain you the indifference curve analysis, I am giving you some assumption of indifference curve analysis. As assumption, you know, necessary condition. So these conditions are necessary before studying, before measuring the indifference curve analysis. That is consumer equilibrium and indifference curve analysis. ये assumptions क्या है, ये मान्यताएं क्या है? So these are the assumption. The assumption are money income of the consumer is given and does not change. मनी इनकम मीन्स कंज्यूमर के पास जितना भी पैसा है, जितनी भी इनकम है, वो गिवन इनकम डज नॉट चेंज, उतना वो चेंज नहीं हो सकता. अगर उसके पास 100 रुपए है तो उसके पास 100 रुपए में ही उसे सेटिस्फेक्शन देना होगा. सपोज इफ ही इज हैविंग 500 रुपीज, तो 500 से वो चेंज नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट रहेगा. इट शुड नॉट बी चेंज. उसे उतने ही पैसे में सेटिस्फेक्शन गेन करना है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स. सो द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज. मनी इनकम कंज्यूमर की चेंज नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, the consumer spends his income which can be perfect substitute of each other. यहाँ पर हम जो दो गुड्स लेंगे वो दोनों गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट होने चाहिए. सब्सटीट्यूट मतलब सपोज एग्जांपल टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स अगर हमने लिया, ऑरेंज एंड एप्पल. बोथ आर फ्रूट्स. अगर हमारे पास ऑरेंजेस अवेलेबल नहीं है तो हम एप्पल भी खा सकते हैं, एप्पल नहीं है तो हम ऑरेंज खा सकते हैं. मीन्स ये दो तरह के फ्रूट्स हैं जिसको कि हम दे आर बोथ, दोनों ही फ्रूट्स हैं जिनके हम एक के बदले दूसरे को यूज कर सकते हैं. तो दे आर नोन एज सब्सटीट्यूट गुड्स. तो यहाँ पर हम जो भी गुड्स लेंगे, जो भी हम दो गुड्स लेंगे, दैट टू गुड्स शुड बी perfect substitute of each other. Next is more of the goods gives more satisfaction to the consumer. This is called monotonic preference. More of the goods gives more satisfaction to the consumer. ये तो this is a tendency of the every consumer. हम चाहे हम हो या कोई भी हो, हम उसके किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कंज्यूमर विल सेटिस्फाइड ओनली व्हेन ही विल गेट्स द गुड्स इन नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सपोज अगर हम एग्जांपल देते हैं कि अगर हम आपको कहेंगे कि आप यहाँ से 2 केले ले लीजिए
और 10 ऑरेंज ले लीजिए, तो दोनों में से आपको चूज करना है कि आप 2 केले खाते हो या 10 ऑरेंज खाते हो, तो डेफिनेटली आप 10 ऑरेंज की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज्यादा है। तो आपको ये लगेगा कि जब जिसमें क्वांटिटी ज्यादा हो तो वही चीज उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं, दैट ह्यूमन बीइंग ऑलवेज gets more satisfaction when he is using number of commodities, means more number of commodities. So more of the goods gives more satisfaction to the consumer. This is called monotonic preference. तो ये जो इंडिफरेंस का एनालिसिस है ये इसी टेंडेंसी पर बेस्ड है कि कंज्यूमर को जिसमें ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी उसी में ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। द कंज्यूमर प्रेफरेंस for the goods, two goods is well defined. Generally, his intensity of desire for a goods would increase when he has less of it, and intensity of desire would decrease when he has more of it. कंज्यूमर की जो गुड्स की दो गुड्स की प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मीन्स एवरीबडी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कम होती है तो हमें जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी तरफ जाते हैं, और जब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हमें उसको लेने की इच्छा कम हो जाती है। इंटेंसिटी मीन्स आवर टेंडेंसी ऑफ डिजायर, मीन्स हम जिस चीज को चाहते हैं, हम अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती और हमें उसको लेने की इच्छा जो है थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन जो चीज हमारे पास कम होती है, दैट मीन्स व्हेन वी आर हैविंग लेस नंबर ऑफ कमोडिटीज, तो उसको हमें पाने की इच्छा जो होती है, द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, वो ज्यादा होती है। यही इंडिफरेंस का हमें बताया है कि व्हेन वी आर हैविंग लेस ऑफ वन गुड, तो हम चाहते हैं कि वो गुड्स हमें और मिल जाए, और जो चीज हमारे पास ज्यादा है हम चाहेंगे कि उसमें से हम थोड़ा सा कम भी कर दें, तो इट डजंट हैव एनी इफेक्ट। तो दिस इज नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है दो गुड्स में वो वेल डिफाइंड है कि जो चीज उसके पास ज्यादा होगी वो चाहेगा कि उसमें से थोड़ा सा दे दे, कम कर दे, ताकि उसके बदले में उसको दूसरा मिल जाए। और जो चीज ज्यादा है उसको वो कम कर सकता है, लेकिन जो चीज कम है वो चाहेगा कि और मिल जाए। so this is known as the intensity of desire. So always where consumer intensity of desire, when he are having more of commodities, so his intensity of getting the good is decreases, and when we are having less of commodities, so his intensity of desire would increases. Next is the consumer is rational and he always maximize his satisfaction. यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो रैशनल कंज्यूमर है, समझदार है, वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। दैट मीन्स always he wants more of the goods which he is less of it, and always he wants less of that goods which he has more of it. मतलब जो चीज कंज्यूमर के पास ज्यादा होगी वो चाहेगा कि उसमें से थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसको सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो चीज कम है उसमें वो चाहेगा कि और ज्यादा मिल जाए। तो कंज्यूमर यहाँ जो है रैशनल कंज्यूमर, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज, वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है, मीन्स वो अपनी सेटिस्फेक्शन फुल सेटिस्फेक्शन चाहता है, और वो फुल सेटिस्फेक्शन के लिए इंडिफरेंस कर्व के थ्रू अगर वो चाहेगा, दैट मीन्स जो चीज़ उसके पास कम होगी वो चाहेगा कि और हो जाए, और मिल जाए, और जो चीज़ ज़्यादा होगी वो उसमें से उसको बदले में दूसरे को सैक्रिफाइस कर लेगा। तो दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यू नो दैट इसमें हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करते हैं कि कंज्यूमर जो है दो गुड्स इसमें लेगा, और वो दोनों ही गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। अगर उस एक गुड्स कम है तो उसके बदले में वो चाहता है कि एक और मिल जाए, तो वो उसके लिए उसको जो ज़्यादा गुड्स है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो पहले को ले सकता है। और इस तरह से वो अपने सेक्रीफाइस लेवल को जो है धीरे धीरे चेंज करता रहेगा। जो चीज़ जिसमें उसको गुड्स की क्वांटिटी कम है उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और जिसमें गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है उसमें उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो इस तरह से वो गुड्स को एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंचेगा। एंड दिस इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एंड इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कि कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी अगर उसके पास कम है तो वो उसको चाहेगा कि और दूसरी कमोडिटी मिले, उसके बदले में वो जो पहली ज़्यादा कमोडिटी उसको सेक्रीफाइस करेगा। तो वो किस रेट में सेक्रीफाइस करेगा इसे कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो ये हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले ये हमने कंडीशंस आपको बताई, इसे एजम्पशंस कहेंगे, नेसेसरी कंडीशंस, कि ये पर्टिकुलर कंडीशंस आपकी होनी चाहिए तभी ये इंडिफरेंस कर्व एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, कंज्यूमर जो गुड्स दो गुड्स को यूज लेने वाला है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए एक दूसरे के, जिसको एक के बदले में वो दूसरे को भी यूज कर सकता है। एंड कंज्यूमर वांट्स मोर ऑफ द गुड्स, सो दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि जब उसके पास जो चीज़ कम है वो चाहता है कि उसको और मिल जाए तभी उसको सेटिस्फेक्शन होगा। सो दिस इज द एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।